Good morning, dear students. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Myself, Vinod Trivedi. Today, we are going to discuss the next part of figures of speech. In previous video, we discussed 7 figures of speech. Now, we are going to discuss the next part of figures of speech. Let us start, students, with antithesis. Okay, you can see antithesis is given: contrasting or opposite ideas or words used within the sentence for poetic effect. Okay, what is given, beta? Contrasting or opposite ideas, by which we can say, see the example: for the cage bird sings of freedom. Okay, for the cage bird sings of freedom. Okay, a cage bird how can sing about freedom? Okay, already which is in prison. So this is a contrast. Okay, who can sings about freedom? Who has freedom, otherwise who can go anywhere. But over here, contrasting ideas, contrasting words have been presented. So for the cage bird sings of freedom, कभी मतलब कि पिंजरा का जो बर्ड है वो फ्रीडम के गीत गा सकता नहीं है, मतलब उसको पता ही नहीं है. नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीमोरन, द स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस where two contradictory terms. Okay, in antithesis two ideas. Over here you will see contradictory terms are united to give the expression a point. For example, and the climbing moon grows small. climbing moon मतलब क्या होता है बेटा? मतलब कि बढ़ता हुआ मून. ग्रो स्मॉल, अब जो मून बढ़ रहा है वो स्मॉल कैसे हो जाए? और एक ही स्टेटमेंट दिया है, एक ही सेंटेंस दिया है. सो दिस इज व्हाट्स ए कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म. क्लाइंबिंग मून ग्रोज स्मॉल. ओके, सो यू कैन सी देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म क्लाइंबिंग मून एंड ग्रो स्मॉल. ओके, दिस इज oxymoron, figure of speech oxymoron. Now next, irony. The real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. The real meaning is exactly opposite. Okay, that which is literally conveyed. अभी कभी हम कभी बोले टॉन्ट में बोलता है ऐसी बात, बराबर, जो मतलब बताना, वो जो वर्ड बोले वो रियल मीनिंग से बहुत उल्टे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन दी पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, मतलब कि कोई जमीन पे कोई स्टैच्यू, उस पर लिखा हुआ था माई नेम इज ओजीमेडियाज किंग्स ऑफ किंग्स. ओके, ओजीमेडियाज पीवी शैली की एक पोएम है, उसमें मतलब उल्लेख किया गया है. सो मेरा नाम मतलब कि ओजीमेडियाज है और किंग्स ऑफ किंग मतलब राजाओं के राजा है. तो राजाओं के राजा तो जनरली सिंहासन होता है, पर ये पेडेस्ट्रियल जगह पे मतलब कि जमीन पे ये चीज़ें मतलब कोई भी जगह पे लिखी हुई है. सो देयर इज अ ऑपोजिट थिंग वी कैन सी ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट बेटा, एपिग्राम. अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड विथ एन एम टू एक्साइट, सरप्राइज and attract attention. For example, our touch can alter all created things. Okay, a brief pointed saying. Okay, pointed saying जैसे मतलब वो वर्ड से पता चल जाता है या हमको इफेक्ट हो जाती है, जो कहने का जो भाव है वो क्लियरली दिख जाता है. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर. A brief pointed saying, our touch can alter all created things. मतलब कि एक टच से बराबर पूरी चीज क्रिएट हो जाती है, या एक टच से कोई नाश भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज एपिग्राम. नाउ नेक्स्ट बेटा, पैराडॉक्स. अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और एब्सर्ड
statement which has some hidden truths, which has some hidden truth in it. For example, a caged bird stands on the grave of dreams. Okay, you can see over here a self-contradictory or absurd statement which has some hidden truth in it. For example, a caged bird stands on the grave of dreams. मतलब कि अब जो बर्ड केज में है वो मौत के नज़दीक ही खड़े, मतलब कि उनकी फ्रीडम तो छीन ली गई है, बराबर कुछ टाइम मतलब के बाद वो मर जाएंगे. ओके, दे आर ड्रीमिंग अबाउट व्हाट से देयर डेथ, ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. ओके, ग्रेवयार्ड आपने नाम सुना होगा, ग्रेव जो कबर होती है वो. नाउ नेक्स्ट बेटा, मेटोनमी, an attribute or a thing is represented by another closely related to it. For example, beneath all uniforms a single body breathe. Okay, beneath का मतलब यहाँ एक्चुअली क्या, हम पोएम कोई भी चीज़ पोएम समझते हैं तो पता चलता है, तो हम पोएम जब रीड करेंगे उसके बाद मतलब मैं आपको जो पोएम पढ़ाई हुई है उसके भी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको मैं करवाऊंगा, बराबर, जिससे क्या आपको पोएम के हिसाब से पता चले. ये पोएम मतलब बाहर की कुछ मतलब उसकी सेंटेंस दिए तो आपको इंटरनल मीनिंग पता ना भी हो, बराबर, पर जो भी लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ उसको पे ध्यान देना है. तो यहाँ क्या लिखा है बेटा, बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ. तो मतलब कि जब इंसान मर जाता है तो एक ही बॉडी होती, सब मतलब जो भी उनका नाम है, स्टेटस है, ग्रेवयार्ड या मतलब कि स्मशान घाट पे कोई भी अलग आइडेंटिटी होती नहीं, सब एक बॉडी होती है. तो सब यूनिफॉर्म्स एक जैसे, ओके, एक बॉडी मतलब कि ब्रीथ मतलब कि है, ब्रीथ कर रही है. ये पोएटिक इफेक्ट है. हमको कभी क्वेश्चन भी हो स्मशान में ये पॉसिबल कैसे हो, ब्रीदिंग कैसे हो सकता है, जो मर गया वो तो खत्म हो गया, पर यहाँ ये बताया गया कि कोई दूसरी चीज़ से, बराबर, एक यहाँ बताया कि एन एट्रीब्यूट और थिंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट. एक बात को दूसरी बात से बताया जाता है. मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. मतलब कि अगर एक वस्तु को उससे अति निकटता से संबंधित दूसरी वस्तु से निर्देश किया जाता है, कैसे, तो जैसे कि अमेरिकन राष्ट्रपति को हमको बताना है उनके बारे में, तो द व्हाइट हाउस सिर्फ बोल दो तो पता चल जाता है कि भाई किसकी बारे में बात की गई है, अमेरिकन राष्ट्रपति के बारे में बात की गई, द व्हाइट हाउस. एक्चुअली द व्हाइट हाउस इज द डिफरेंट थिंग, ओके, इट इज़ ए मैन मेड थिंग्स वी कैन से, और राष्ट्रपति ह्यूमन बींग्स, ओके, वो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स ए प्लेस है व्हाइट हाउस, और राष्ट्रपति खुद लिविंग ह्यूमन बींग्स है. फिर भी आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, उसके निकट वाली चीज़ से निर्देश कर सकते हो. मतलब कि व्हाइट हाउस बोलो तो उसका पता चलता है कि भाई प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है. आपको थोड़ा अलग भी लग सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है, पर ये पोएट है, पोएट के लिए कुछ फ्रीडम दी गई होती है. पर क्यों, ये पोएम जब वो एक्सप्लेन करते तो आपको उसका इंटरनल मीनिंग पता चल जाता है. क्योंकि हमने देखा था एक दो पोएम में, बराबर, ट्रीज वाला, पोएट ने बोल दिया कि आप ट्री को थोड़ा थोड़ा मत काटो, पूरा निकाल दो जिससे वो बड़ा ना हो जाए. तो हमको ऐसा लगा कि पोएट क्यों ऐसा बोल रहा है, पर ऐसा क्यों बोला गया था बेटा, हमने पोएम बराबर समझी थी, इसलिए हमको पता है कि पोएट का इंटरनल मीनिंग कुछ और था, बोलने का जो वर्ड्स लिखे थे कुछ और थे. तो फिगर्स ऑफ स्पीच बात ये है कि आप जैसे पोएम को समझते हो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाता है. ओके, पर आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके जो एग्जाम में भी फिगर्स ऑफ स्पीच आएंगे वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच बुक के आएंगे, बराबर, आपके पोएम्स के आएंगे, मैं आपको मतलब लिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच दे दूंगा, बराबर, उसमें से आएंगे, बराबर. बोर्ड में भी ये पोजीशन है, आपको टेंशन उसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लिटरेरी चीज़ है. आप बेसिक से ही आपको पता चलेगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगोगे. सो डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट इट. ओके, सो दूसरा मैं मेट्रोनॉमी का दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ. ओके, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड. ओके, तो पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के साथ मतलब बात की गई, उसका निकटता वाली बात है. ओके, पेन और कब बोले पेन और स्वॉर्ड कैसे एक जैसे होती है, स्वॉर्ड अलग बात है, पेन भी अलग बात, पर हमको पता है कि पेन से हम बड़े बड़े मतलब रिवॉल्यूशन हमने किए गए हैं, हमने देखे हैं,
बराबर। तो ये सारी चीज़ें मतलब जिसको पता चलता है वो ही समझ पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, साइनेक डॉग। अब पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल और द होल स्टैंड्स फॉर अ पार्ट टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट। मतलब कि एक चीज से बाकी के पूरी चीज का पता चल जाए, या पूरी चीज की बात है तो मतलब एक छोटी वाली बात पता चल जाए। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको एक एक्चुअली ये कोई लिटरेरी नहीं, कोई लिखा हुआ नहीं, पर एक एक्सप्लेनेशन के दे रहा हूँ, आपको ये समझना है। कभी सैनिक डॉग की डेफिनेशन में मत डालना, पर आपको एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। सपोज एक एप्पल का पीस है, बराबर, एक एप्पल का सिर्फ पीस है, कट किया गया हुआ पीस है, वो पीस, और दूसरा एक पूरा एक एप्पल है, बराबर। तो एक एप्पल का छोटा पीस को देख के आप क्या बोलोगे, एप्पल है, ओके, और पूरा एप्पल है वो भी आप एप्पल बोलोगे। तो एक चीज़ को देख के मतलब कि बाकी की चीज़ को पता चलता है, उसको बोलते हैं साइनेक डॉग। यहाँ देखते हैं क्योंकि उसका लिटरेरी फॉर्म तो कुछ अलग होगी, लाइन कुछ अलग होगी, तो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अब पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल और द होल स्टैंड्स फॉर अ पार्ट टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट। देयर हैंड्स आर आर्स, देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे हैं, ओके, एंड देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी जो लाइन है वो हम पढ़ रहे हैं, ओके। वो मतलब कि बात जो है, जो लिखा है उससे पूरे उनके हाथ की बात पता चल गई, ओके। पोएट का जो लिखा हुआ है चीज़, बराबर, उससे उनके हाथ के बारे में हमको पता चल जाता है, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट, क्लाइमेक्स। अ सीरीज ऑफ आइडियाज और वर्ड्स are placed in increasing order of importance for poetic effect, okay। या हमको मैथ्स आना चाहिए, ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग, ओके, असेंडिंग, डिसेंडिंग। अब यहाँ वो तो नंबर होते हैं 2 3 4 5, बट यहाँ कैसे पता चल जाएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। सी, इफ यू लेट अस हैव हिज नेम एंड टाउन एंड स्टेट, ओके। सो जनरली फॉर आइडेंटिफिकेशन व्हाट इज फर्स्ट थिंग, नेम, then second is town, and then state, and if we want to go further, okay, country. So this is in ascending order, name, okay, town and state. I hope you can understand, it is very easy, okay. Climax. Now student, next, after understanding climax, anticlimax is opposite of it, okay. This is the last figures of speech for this video. Anticlimax, a series of ideas or words are placed in decreasing order or importance for poetic effect, okay. As you know, the use of figure of speech is for creating poetic effect. So you over here you can see the rain to mist and cloud again, ओके। जनरली क्या होता है, क्लाउड बनता है, ओके, और फिर मिस्ट एंड रेन, बारिश आती है, या उल्टा, रेन, ओके, देन मिस्ट एंड देन क्लाउड, ओके। दिस इज अ एंटी क्लाइमेक्स, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लाइमेक्स इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड सपोज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can send me message, okay, otherwise you can phone me also. Now another thing is this, you have to write down this thing in your grammar notebook, okay, it will be checked. Now next, don't worry about the definition and all that things, okay. After finishing remaining some of figures of speech, okay, I will teach you some figures of speech of your textbook, and you have to learn this thing, okay. So don't worry, don't take any tension about it, okay. Thank you, have a nice day.